जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो बेसिकली दीज आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच यू गाइस हैव सेंड टू मी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम March 19, पेपर 42। ठीक है, एंड दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू IR स्पेक्ट्रोस्कोप, सॉरी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। दो चार पार्ट्स आगे पीछे दूसरे चैप्टर से भी हैं, बट मेनली दिस इज़ फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। और थोड़ा सा ज़रा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में वैसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल नहीं आते, बट ये थोड़ा सा ज़रा आप कह लें कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो दिस इज़ बोथ फॉर AS लेवल एंड A2 लेवल, क्योंकि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी अब AS में है। ठीक है, तो ये है कि दोनों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चले जी, तो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन के अंदर। सो दे आर सेइंग दैट द नेम्स ऑफ मैनी ड्रग्स used in medicines often include part of the names of the functional groups their molecule contain. Right, the names of many drugs used in medicine often include part of the names of the functional groups. यानी जो medicines के नाम होते हैं उनमें आपको functional group से related कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। तो suggest two functional group present in a molecule of the drug named chloramphenicol. ठीक है, तो ये नाम को देख के, नाम को पढ़ के आपने जज करना है कि उसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें क्लोरमफेनिकोल में ऑब्वियसली क्लोरो या क्लोरीन जो है ये मौजूद हो सकता है। देन इट इज़ सेइंग फेनिकोल, सो दैट मीन्स के फिनोल हो सकता है, बेंजीन लिख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा क्लोरम, ये जो AM है, दिस मीन्स के इसमें अमाइन ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। तो सजेस्ट टू फंक्शनल ग्रुप्स, तो आपने कोई से भी दो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो सजेस्ट कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द ड्रग नेम्ड कीटामाइन रेडिली रिएक्ट्स विद प्रोटॉन्स एज शोन। कीटामाइन रिएक्ट्स विद प्रोटॉन्स, स्टेट द रोल ऑफ कीटामाइन इन दिस रिएक्शन। सो सिंपल क्वेश्चन है, कीटामाइन इज गेनिंग प्रोटॉन, तो a substance which gains proton, that means ke it is acting as a base, acting as base. Ketamine gives an orange precipitate with 2,4-dinitrophenylhydrazine. Suggest the functional groups in the ketamine molecule responsible for this observation. So basically, whenever a substance reacts with 2,4-DNPH and gives orange precipitate, that means this is a test for carbonyl group. Okay, this is a test for carbonyl group, and as name suggests, ketamine would contain ketone. Ketone is a carbonyl compound, so इसका मतलब ketamine present, in ketamine we have carbonyl group present, right? So we can say that suggest the functional group in the ketamine responsible for this observation. This is carbonyl, or we can say ketone. ठीक है जी, the mass spectrum of ketamine is determined. The mass spectrum of ketamine is determined. Now this part is from mass spectroscopy. Two peaks close to the molecular ion peak M are observed with the relative abundance shown in the table. Two peaks close to the molecular ion peak. So basically they have given us three peaks, peak M, M+1 and M+2. So M peak जो है ये molecular ion को represent करती है, this represent molecular ion. ठीक है, mass to charge value given है and relative abundance given है. So they're saying that two peaks close to the molecular ion peak are observed with the relative abundance shown in the table. So close to the molecular ion peaks are M+1 and M+2. अच्छा जी, so the question is use the numbers in the table to show that there are 13 carbon atoms in a ketamine molecule. So this is very simple question. We just have to prove that it contains 13 carbon atoms. For that we use the relative abundance of molecular ion peak and M+1 peak, because molecular ion peak, this is due to carbon 12. Molecular ion peak is due to carbon 12, and M+1 we say that this is due to carbon 13, because carbon के तीन isotopes हैं, carbon 12, carbon 13 and carbon 14. Carbon 14 radioactive isotope है, ये trace amounts में होता है. Carbon 13 की relative abundance है around 1.1%. So that means कि आपके पास अगर 100 molecules हैं तो 100 में से एक molecule में one of the carbon atom would be carbon 13, and the ratio and the relative abundance of that molecule would be 1.1%.
राइट. सो दिस M+1 पीक, दिस इज, तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक कार्बन 13 होगा तो उसके मास में 1 का एडिशन हो जाएगा. सो द M+1 पीक इज ड्यू टू कार्बन 13. Right, so use the numbers in the table to show that there are 13 carbon atoms in a ketamine molecule. So if we know the relative abundance of M and M+1 peak, we can find out the number of carbon atoms in the organic compound, and formula for that is number of carbon atoms is equals to 100 upon 1.1 कार्बन और कार्बन 13 की abundance into relative abundance of M+1 अपॉन relative abundance of M+. ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है. तो हमें प्रूव करना है कि इट कंटेन्स 13 कार्बन एटम्स. सो दिस वुड बी 100 अपॉन 1.1 इनटू relative abundance of M+1 is 14.3 डिवाइडेड बाय M प्लस की relative abundance है 100. तो 100 से 100 कैंसिल हो गया. 14.3 डिवाइडेड बाय 1.1, 14.3 डिवाइडेड बाय 1.1, दैट इज इक्वल्स टू 13. तो ये प्रूफ हो गया कि दिस कंटेन्स 13 कार्बन एटम्स. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, in addition to carbon and hydrogen atoms, each molecule of ketamine contains one atom of each of 3 different elements. मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हर कीटामाइन मॉलिक्यूल में 1 एटम ऑफ ईच ऑफ 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, एक एक एटम मौजूद है 3 डिफरेंट एलिमेंट्स के. दीज आर कॉल्ड हेट्रो एटम्स. राइट, सो मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम है, इसलिए इसको हेट्रो एटम्स कहा जा रहा है. सो वन ऑफ दीज हेट्रो एटम इज अ हैलोजन. यूज द फिगर्स इन द टेबल टू सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द हैलोजन. एक्सप्लेन योर आंसर. सो नाउ बेसिकली अगर आप देखें तो M और M+1 पीक तो हमने कह दिया कि दिस इज ड्यू टू कार्बन 12 एंड कार्बन 13. अब ये जो M+2 वाली पीक होती है, द पीक M+2, दिस इज ड्यू टू द आइसोटोप ऑफ हैलोजन. बिकॉज हमारे पास 2 ऐसे हैलोजन्स हैं जिनके आइसोटोप्स में 2 का डिफरेंस आता है. ठीक है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37. सो अगर 35 से 37 में जाएंगे तो 2 का इंक्रीज आएगा, तो वी गेट अ पीक नोन एज M+2. सिमिलरली ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81. ठीक है, इनमें भी 2 का डिफरेंस है. तो अब यहाँ पे आपके पास M+ और M+2 पीक आ रही है. दैट मीन्स दिस इज सम हैलोजन. ठीक है, M+ और M+2 पीक आ रही है, तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया. यूज द फिगर इन द टेबल टू सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ दिस हैलोजन. वी हैव टू सजेस्ट द आइडेंटिटी, वेदर इट इज क्लोरीन और ब्रोमीन. ये तो कंफर्म है कि हैलोजन है, बिकॉज M+2 पीक आ रही है, दैट मीन्स इट इज हैलोजन. नाउ हाउ टू फाइंड आउट कि विच हैलोजन इट इज. आपने सिंपल रेशो देखना है, relative abundance देखनी है. So the relative abundance of M peak is 100 and the relative abundance of M+2 is 33.3. ठीक है, तो ये relative abundance जो है हमें बताएगी कि either it is chlorine और bromine, because Cl35 और 37, Cl35 की relative abundance है 75% और Cl37 is 25%, means they are present in 3:1 ratio. और Br79 एंड 81 जो हैं ये 50-50% होते हैं. दैट मीन्स दे बोथ आर प्रेजेंट इन 1:1 रेशियो. और क्योंकि M+ और M+2 एंड बिकॉज M+ एंड M+2 पीक्स की जो हाइट्स का रेशियो अगर आप देखें तो दैट इज़ 100 इज़ टू 33.3. सो दैट मीन्स ये 3:1 के रेशियो में है. राइट, तो वी कैन से दैट इट इज़ क्लोरीन बिकॉज द रेशियो ऑफ M and M+2 is 3:1. So that implies the halogen is chlorine. Chlorine is present. All right. Now the next part is another peak in the mass spectrum of ketamine has a mass to charge value of 240. प्रिडिक्ट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दिस पीक. ठीक है जी, मतलब आपको एक 240 पे एक और पीक मिल रही है एट 240. सो वी हैव टू प्रिडिक्ट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दिस पीक.
ना थोड़ा सा अगर हम इसको यहाँ पे देखें, मतलब हमारे पास m पीक है, m+2 पीक है, m+3 पीक है, एंड नाउ अनदर पीक. सो m पीक जो है दिस कम्स एट 237. m+2 इज़, सॉरी मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिख दिया है. दिस इज़ m+1 एंड m+2. m+1, m+2. So m+1 peak is at 238, m+2 peak is at 239, and they are saying that another peak at 240. So that means इसको हम नाम दे सकते हैं m+3. अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप इसको सॉल्व करें कि m पीक जो है दिस इज़ ड्यू टू कार्बन 12, Cl35. m प्लस इज़ ड्यू टू कार्बन 13. जहाँ एक का डिफरेंस आएगा मतलब कार्बन 13 इन्वॉल्व हो गया, Cl35 भी है. m+2 इज़ ड्यू टू कार्बन 12, क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है. m+2 में और m में 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब कार्बन 12 ही है बट Cl37 है. ठीक है जी, और रेशो से भी पता लग रहा था 3:1 का रेशो है. और m+3 पीक मतलब यहाँ पे आपके पास कार्बन, अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो m+2 पीक में कार्बन 12 थे, Cl37 था. तो अब एक का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब दिस इज़ कार्बन 13 और Cl37 ही है. ठीक है. सो दिस m+3 पीक, द isotopes which is isotopes responsible for m+3 peak is carbon 13 and Cl37. तो मतलब m+2 और m+3 पीक में क्लोरीन 37 ही मौजूद है, बट कार्बन का m+2 और m+3 पीक्स में कार्बन का डिफरेंस है. ठीक है. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव अबंडेंस. सो अब यहाँ पे 2 डिफरेंट वेज हैं थ्रू विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव अबंडेंस. आइदर वी कैन यूज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स फार्मूला. ठीक है जी. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज इक्वल्स टू 100/1.1 इंटू पीक हाइट ऑफ m+1 एंड पीक हाइट ऑफ m+ पीक. तो अब मैं यहाँ पे जो 2 पीक्स यूज़ करूँगा इस फॉर्मूले में वो ये m+2 और m+3 है, क्योंकि इन दोनों में कार्बन का डिफरेंस है. ठीक है जी. तो मुझे ये वाली पीक का मतलब इस पीक की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड आउट करनी है. तो मैं कहता हूँ कि जी रिलेटिव अबंडेंस ऑफ m+3 अपॉन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ m+2, क्योंकि m+3 और m+2 में कार्बन 12 और 13 का डिफरेंस आ रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है. ठीक है. तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो वही है 13 इज इक्वल्स टू 100/1.1 इंटू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ m+3. ये हमें फाइंड आउट करनी है, इस पीक की अबंडेंस फाइंड आउट करनी है. तो x एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ m+2 ये गिवन है हमारे पास, दिस इज़ 33.3. तो ये हम यूज़ कर लेते हैं 33.3. नाउ वी विल सॉल्व इट एंड वी गेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, sorry, the relative abundance of m+3 peak. ठीक है जी. So this would be 33.3 multiply by 1.1 into, इसको सीधे इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं. So this would be into 13. So this is 476.19 divided by, ये 100 आकर डिवाइड हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू x. सो दिस डिवाइडेड बाय 100, सो वी गेट 4.76 और वी कैन से दिस इज 4.8 और 4.76. So this is one way of finding out the relative abundance of m+3. Another way, another approach is कि बेसिकली आपके पास जो, ये तो हमने कार्बन के आइसोटोप्स के हिसाब से सॉल्व किया. अब अगर हम इसको क्लोरीन के आइसोटोप्स के हिसाब से सॉल्व करें तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स जो हैं जिनमें 2, यानी आप कह लें कि Cl35, आपने वो 2 पीक्स लेनी है जिनमें कार्बन सेम हो, मतलब कार्बन 13. ठीक है जी. कार्बन 13 इसमें भी है, कार्बन 13 इसमें भी है, बट इन दोनों में m+1 और m+3 में, यानी अगर आप m+1 और m+3 की बात करें तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है वो क्लोरीन का डिफरेंस, क्योंकि 2 का डिफरेंस आ रहा है, 238 एंड 240. तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, क्लोरीन का डिफरेंस आ रहा है 238 इज ड्यू टू Cl35 एंड 240 इज ड्यू टू Cl37. ठीक है. कार्बन दोनों में सेम है, C13. तो इन दोनों हाइट्स का जो रेशो है वो, बिकॉज 238 इज ड्यू टू 35, तो इन दोनों का रेशो 3:1 का होना चाहिए.
ठीक है. The height ratio of 238 and 240 must be of 3:1. So if the height ratio of 238 is, if the relative abundance of 238 is 14.3, 238 का relative abundance कितना है 14.3, so 240 का relative abundance इसका 1/3 होना चाहिए. ठीक है, तो हम इसका 1/3 निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है. दिस इज ड्यू टू क्लोरीन 35 एंड 240 वाली जो पीक है दिस इज ड्यू टू क्लोरीन 37. तो इन दोनों का पीक हाइट का रेशियो 3:1 का होगा. द पीक हाइट ऑफ 238, the peak height of 238 would be of 3 times of the peak height of 240. So if the peak height of 238 is 14.3, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो we get the same answer, that is 4.76 और 4.8. ठीक है, सो आप इसको कार्बन के आइसोटोप्स के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हैं एंड वी कैन सॉल्व इट बाय द आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन. तो दोनों तरह से ये सॉल्व हो सकता है. ज़्यादा बेहतर क्लोरीन के हिसाब से था, बट ये है कि मैंने दोनों ही तरीके यहाँ पर डिस्कस कर लिए. अच्छा जी, उसके बाद यूज़ द इंफॉर्मेशन इन बी टू कंप्लीट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कीटामाइन बाय वर्किंग आउट द आइडेंटिटीज़ ऑफ द 3 हेटेरो एटम्स एंड द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट. तो आपको मालूम है कि जी अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है. कार्बन 13 है, देन इट हैज़ 1 क्लोरीन प्रेजेंट इन इट. एंड जो बी में इंफॉर्मेशन थी, what was the information given in B? Yes, this. In addition to carbon and hydrogen atoms, each molecule of ketamine contain 1 atom of each of 3 different elements. तो 3 different elements में एक तो क्लोरीन हो गया, and because it is ketamine, तो अमाइन है तो नाइट्रोजन होगा और कीटोन है तो ऑक्सीजन होगा. तो बाकी के जो 2 एटम्स हो गए दोज आर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो और क्योंकि कह रहे हैं कि ईच ऑफ दीज एटम्स कंटेन, ईच मॉलिक्यूल ऑफ कीटामाइन कंटेन 1 एटम, एक एक एटम है, तो हमने एक एक एटम तीनों को रख दिया. और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज़ 237. m प्लस पीक वॉज एट 237. ठीक है, तो हम 237 के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. 13 कार्बन एटम्स हैं, तो 12 into 13 दैट इज़ इक्वल्स टू 156 प्लस क्लोरीन 35 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस नाइट्रोजन 14. सो दिस इज़ 221. टोटल मास है 237. तो हाइड्रोजन फाइंड आउट करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 237 में से. सो दैट इज़ 16. So that means we have 16 hydrogen, 1 chlorine, 1 oxygen and 1 nitrogen. So this is the molecular formula of this ketamine.